Hmm. Hello. अस्सलामुअलैकुम। आपकी आवाज थोड़ी कम ही आ रही है। Okay, I'll try to speak louder. So ओके फाइन। maybe. Okay, great. So wonderful to have you here. Finally, we did not experience too many technical difficulties. For 7:03 पे हम start कर रहे हैं. We are a bit, you could say, picky about this कि हमें punctuality का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए. So lovely to have you here. Let's get started with your introduction कि who is this person जिसको हमने इस सेशन के लिए बुलाया है to help us figure out uh, what would be the right learning track for your kids. So पहले मैं अपना भी एक brief सा introduction share कर देता हूँ. My name is Shujaul Hassan. I am the founder of the STEM Educators. I am an educator. I have been teaching STEM related subjects for more than 5 years now. Have developed curriculum for multiple levels and have taught at a couple of institutes. And yeah, I lead the STEM educators with a team of excellent teachers, and we have a really excellent community of parents with us as well. और उन्हीं में से एक मुबशर पाशा हैं. तो ज़रा मैं आपका इंट्रोडक्शन देता चलूं कि आई हैव नोन यू फॉर अराउंड 3 years. And from the very first time, I knew that you were like very much dedicated about your kids' education. You do have a background in computer science, but I see you as an educator overall, not just for your kids, but also for the people around you. But still, you did have some professional teaching experience as well at a couple of institutes in Lahore, including NCA and another maybe School of Technology, I guess. But the main reason why most of the parents, I think, they are joining us is the number of distinctions that your kid Ilm has achieved over the years. We know that he plays piano and he has been able to get distinction twice in the ABRSM, which is the Associate Board of Royal Society of Music. Yes, I was able to get that acronym correctly. So thank you for that. And Aman as well, you've told me about an incident that really, you could say, strengthened your belief in being an educator for your other child as well. So we would also love to hear about that. And yeah, for you to be able to like embody this thing कि आप lifelong learning जो है ना वो philosophy आप you like ooze it out very conveniently from your whole personality. So we'd love to hear more about it. तो पहले तो जरा आप मुझे इसके बारे में अगर आप ज़्यादा बता सकें मे बी अबाउट योर किड्स इल्म और जो है अमन what sort of learning tracks have they gone through or and what makes you think you are an excellent educator for them, so maybe we'll start with that. अच्छा, हम यही पहले डिस्कस कर रहे थे बैठ के। अमन इज माय एल्डर किड। वो बड़ा है। ही इज नाउ इन एफसीयू, फॉर्मर क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी में बिजनेस स्टडीज कर रहा है। और जो इल्म है वो अभी ही इज 9 years old, तो अभी वो एक तरह छोटा ही है, स्टार्ट ही हुआ है। मगर हाँ, जो बात हो रही थी वो ये हो रही थी कि एक्चुअली आई टुक टीचिंग नॉट एज अ प्रोफेशन, बिकॉज मैं काम तो और भी कर रहा था, मगर हमारी इन हाउस भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग्स वगैरह होती थी जो मैं कंडक्ट कर लेता था कभी कभी। और उसके बाद फिर मैंने पार्ट टाइम एक दो जगह उन्होंने मुझे कहा कि भाई जिस तरह लाहौर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी उन्होंने बुला लिया, या फिर एक वो एपटेक होता था उन्होंने बुला लिया कि जी आप दें। यूं सिमिलरली मुझे एनसीए वालों ने कहा कि जी आप एज एन एसोसिएट प्रोफेसर जो है वो ऑडियो इंजीनियरिंग, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड जो है वो कंप्यूटर और ऑडियो इंजीनियरिंग इन दोनों में है। तो तब तक तो चले ठीक था। आई वॉज डूइंग इट मोर आउट ऑफ सर्विस, जिसे कहते हैं ना कि गिविंग इट बैक टू द कम्युनिटी। आपने कुछ पढ़ा है बाहर से, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता बाहर जाना, तो आपको कोई नॉलेज है तो आप दे रहे हैं। मगर आई थिंक अमन वाज द वन जिसकी वजह से मैं इस चीज मुझे ये बिलीव होना शुरू हुआ कि ओके यार, आई कैन बी अ गुड एजुकेटर टू माई किड्स। बिकॉज अमन के साथ कुछ केस थोड़ा सा डिफरेंट था कि he wasn't doing too well in studies, basically flunking a lot of subjects or something like that, and I said कि चलो मैं इसको give me 5-6 months, मैं इसको पढ़ाता हूँ। तो उसके आगे O levels के एग्जाम्स आ रहे थे, so he was getting, उसके जो टीचर था कंप्यूटर साइंस का स्कूल में,
he said he's a backbencher. So मेरे मुंह पे कहा he's a backbencher, he's not gonna succeed or anything like that, he's not gonna do anything in computers. मैंने कहा ਤੁਹਾਡੀ ऐसी तैसी, मैं खुद करके देखता हूँ. तो 6 महीने एग्जाम्स के थे और मैंने 6 महीने उसको बैठ के क्योंकि कंप्यूटर वाज काइंड ऑफ लाइक माय फोर्टे, आई एम नॉट टू गुड एट इट, मगर ठीक है कुछ बैकग्राउंड था तो मैंने उसको वो पढ़ाया. एंड फ्रॉम गेटिंग D's in his school he got a A+ in computers. And same happened with the other subjects that I taught him. He got A+s and A's and everything. तो उससे मुझे थोड़ा अपने ऊपर एतमाद हुआ, ट्रस्ट हुआ कि यार ओके आई कैन डू दैट. और फिर जब दूसरे की बारी आई, इल्म, चूंकि इल्म तो था भी मेरे पास, तो वो फिर मैंने उस कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट किया कि यस आई एम ऑन द राइट पाथ, मैं इसको जो कुछ पढ़ा रहा हूँ वो चीज चलेगी. एंड दैट पेड ऑफ. तो हाँ, वो चीज paid off really well. इट पेड ऑफ रियली वेल. और उसमें देखें एक चीज ये भी होती है कि मतलब बच्चे का खुद इंटरेस्ट भी, मतलब आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं और वो बच्चा जो बस वो जबरदस्ती का एक आपके साथ बैठा हुआ है, मगर इल्म में एक चीज ये है कि मतलब ही हैज दैट क्वेस्ट फॉर नॉलेज, तो आपको खुशी होती है. एंड आई उससे मुझे ये भी होता है कि यार ओके आई विल टेक माई टाइम आउट, कि ये इतना इंटरेस्टेड है तो मैं इसको आधा घंटा 20 मिनट्स या मैं बैठ के कोई ना कोई चीज नई हम करें. दैट्स हाउ इट गोज. और वो जो कोई ना कोई जो चीज नई है, it's a wide range of activities that he's done that I've seen. I mean, one might say कि आपके पास एक unfair disadvantage है because आप खुद जो है कंप्यूटर साइंस की फील्ड से बिलोंग करते हैं, but we've seen him take distinction in ABRSM जो कि उसकी पियानो परफॉर्मेंस के लिए. But I've got to know this कि he's learned a little bit of Kathak as well, and he does so many other activities like अभी वो एक artificial intelligence से related जो है ना एक प्रोग्राम में था with among like 70 or so other students, and they were all of a higher age group, but even then Ilm was the winner out of a quiz in that program. So would like to know this a little bit more कि what sort of courses has Ilm has taken. बेशक आपने वो खुद से सिखाए हैं या फिर किसी और सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से हैं, लाहौर में ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं दैट यू लुक अप टू कि वहाँ के जो लर्निंग प्रोग्राम्स हैं दे हैव रियली शेप्ड the thinking of your kids, बेशक वो अमन हो या फिर वो इल्म हो. So what are these courses जो है ना maybe other parents can also benefit from? अच्छा, देखिए इस सारी डिबेट में जाने के लिए इट्स नॉट सो इजी एज टू से कि जी आपका बच्चा आप कहें कि आप ये कर ले या ये कर ले. आई विल आंसर दिस क्वेश्चन, मगर टू मेक इट कोई फायदा भी हो इस को जवाब देने का, उसका बेहतर तरीका ये है कि हम पहले जरा थोड़ा सा पेरेंटिंग के ऊपर बात कर लें, ताकि हम थोड़े रिसेप्टिव हों कि जो मैं बात कर रहा हूँ उस पे मतलब चले आपने तारीफें कर दी, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मेरा ये बैकग्राउंड है और समथिंग लाइक दैट. मगर यू आस्क्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड पेरेंटिंग एज आई सी इट कि किस तरह होती है. सो give me stay with me for a few minutes. Yes, definitely. हाँ, देखिए पहली चीज ये है कि हमने कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो हम उसके लिए 4 चीजें करते हैं. ठीक है, वो पहली चीज हमारी जो होती है वो होता है कि रियलाइजेशन इज द फर्स्ट थिंग. हम रियलाइज करें कि वो प्रॉब्लम भी है. तो मुझे ये बताइए कि आज जो हम बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक को कर रहे हैं, वो टॉपिक क्या है? क्या बताएंगे मुझे? व्हाट इज दैट टॉपिक? वो टॉपिक है कि आपके बच्चों के लिए एक अप्रोप्रिएट लर्निंग कोर्स आपने कौन सा ढूंढना है, लर्निंग ट्रैक आपने क्या ढूंढना. तो दिस इज रियलाइजेशन कि हम ये रियलाइज कर रहे हैं कि यार हमने अपने बच्चे को कोई कोर्स करवाना है या उसको कोई डायरेक्शन हमने देनी है. सो दैट्स स्टेप नंबर 1, जो हम सब जो भी इस वक्त यहाँ पे कितने लोग 16 लोग बैठ के देख रहे हैं, हमने ये चीज रियलाइज की है तो हम यहाँ पे बैठे हैं और हम इस चीज को बैठ के सुन रहे हैं, वरना सुनता कोई नहीं है. सेकेंड स्टेप इस प्रोसेस में आपका ये आता है रिकग्निशन, रिकॉग्नाइज करना उस चीज को कि भाई ओके देयर इज अ प्रॉब्लम. ठीक है ना, पहले तो रियलाइज किया, अब आपने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ यार ये वाकई प्रॉब्लम मेरे साथ है, इसको हमने कुछ करना है. ठीक है, उसके बाद थर्ड थिंग इज अंडरस्टैंडिंग दैट प्रॉब्लम, एंड फाइनली द फोर्थ थिंग इज कि हमने उसका सोल्यूशन कोई देना है. दैट्स हाउ step by step you get into, so from realization to recognition to understanding to finally giving. तो हमने पहली चीज कह दी कि जी चलो ठीक है, हमने पहला काम तो हमने कर लिया यहाँ पे कि हमने रियलाइज कर लिया कि जी एक प्रॉब्लम है जिसको हमने कुछ सॉल्व करना है. द सेकंड पार्ट इज रिकॉग्नाइजिंग. रिकॉग्नाइजिंग में थोड़ी सी मैं आपको डिबेट करके बताता हूँ कि
मेजरली जो पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं वो 4 तरह के हैं, बहुत तरह के हो सकते हैं मगर 4 तरह के मेजर हैं। अब जितने भी लोग मुझे यहाँ पे बैठ के सुन रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे, आपको वो मैं पेरेंटिंग स्टाइल बताऊंगा। आपने हम आई वांट टू मेक इट अ बिट इंटरेक्टिव, आपने बैठ के देखना कि आप कौन से स्टाइल में फिट इन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे पास पेरेंटिंग स्टाइल है वो है अथॉरिटेरियन, ठीक है। अथॉरिटेरियन स्टाइल वो है जो कि 70s 80s में जो माँ बाप जिस जनरेशन के थे वो बेसिकली किया करते थे, और इसको हम बड़े आराम से उस तरह कह सकते हैं जिसमें ये होता है कि मैंने कह दिया तो यही होगा, बहस नहीं चाहिए, ठीक है ना। ओके। अगर मैं इसको कैरियर के हिसाब से देखूं बच्चे के, ये जो अगर हम ये जो जिस टॉपिक की बात करें कोर्स वर्क के हिसाब से, तो आप यूं समझ लें कि मतलब मैं अपने बच्चे के लिए एक प्रोग्रामिंग क्लास जो है समझ लें स्क्रैच की मैं चूज करूं, और मैं उसको, चाहे उसका इंटरेस्ट किसी और चीज में है, क्रिएटिविटी की किसी और चीज में, मैं उसके सामने रखूं, उससे कहूं ये कोर्स तुमने करना है, मैंने कह दिया, बहस नहीं चाहिए, खत्म करो, ठीक है। सो दैट बीइंग एन अथॉरिटेरियन पेरेंट, तो ये एक स्टाइल है। थिंक कि कहीं आप ये तो नहीं है। इनके नुकसान और फायदे मैं आपको बात बताऊंगा। सेकंड नंबर जो आता है वो है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल में ये होता है कि मतलब आप बच्चे का ओपिनियन भी लेते हैं, ठीक है, आपने रूल्स भी सेट किए हुए हैं, आपने कॉन्सिक्वेंसेस भी सेट किए हुए हैं, ठीक है, ओके। तो आपने बच्चे को कुछ बाउंड्रीज आपने डिफाइन किया कि भाई अच्छा ये तुम कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, जहां पे वो गलत है वो आप उसे रोकेंगे, ठीक है, उसे टोकेंगे भी, और जहां पे वो सही है वहां पे आप उसको प्रेज करेंगे या रिवॉर्ड करेंगे, ठीक है, ये अथॉरिटेटिव है। और अगर इस चीज को मैं इस चीज में लेकर आऊं कि ओके अगर हम बच्चे की कैरियर चॉइस या फिर कौन सा कोर्स करना है, उस हिसाब से अगर हम बैठ के देखें तो एक अथॉरिटेटिव पेरेंट क्या करेगा, वो बैठ के अपने बच्चे को देखेगा कि उसकी इंटरेस्ट क्या है, उसको क्या क्या फैसिलिटेट करेगा उन चीजों को, उन इंटरेस्ट के मुताबिक उसके आगे 4-5 कोर्स रखेगा। देखो यार ये एक माइनक्राफ्ट प्रोग्रामिंग का कोर्स भी हो रहा है, ये स्क्रैच का भी हो रहा है, ये कुकिंग का कोर्स भी हो रहा है, तुम्हारी इंटरेस्ट इस तरह की है, ये वो, तो ही विल लेट द किड डिसाइड बेस्ड ऑन हिज गाइडेंस कि भाई देखो तुम ये बड़ा अच्छा करते हो, तुम्हें ये करना चाहिए। तो दैट्स the second kind of parenting. I feel Third like that's job a of very parenting. important step. Sorry to cut in over here. That's a very important step to even present okay, what are the options available. Because there is Yeah. one key option that we haven't even like explored or seen around a lot, जो कि आपने recently एक book share की थी that is excellent for developing empathy in kids, which is I think a very crucial subject, जो कि हमें कोई ऐसी other organization हमें नहीं मिलती जो कि early childhood education में empathy develop करने के ऊपर काम कर रही हो. I feel like there might be some concerns regarding sustainability of that venture, कोई इस तरह की होंगी, but maybe somebody could do it in a volunteering form. So हाँ, that's an excellent step कि आप at least options जरूर present करते हो and let the kid choose that, giving the kids that freedom and that ownership and that trust on that kid कि ये बच्चा choose कर सकता है अपने लिए. I think that's also very important in this regard. It is very important. Obviously because आप बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं जिसके लिए उसने फिर मतलब कि वो जवाबदेह भी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के, मतलब कि उसने उसकी अपनी चॉइस से है, ठीक है, मगर आपने उसको गाइड किया। एंड देन द थर्ड टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल इज बेसिकली आपका परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल में आपने उमन सुना होगा कि हाँ बच्चा है ना करने दो, ठीक है ना, ये बेसिकली हमारा परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल होता है जिसमें हम कहते हैं कि यार बच्चा जो मर्जी कर रहा है इसको करने दो। तो इस तरह के जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को रोकते नहीं किसी चीज से भी, ठीक है, दे ओनली स्टेप इन जब मतलब काफी ऐसी क्रूशियल क्रिटिकल स्टेज में कोई चीज आ जाती है तो तब दे स्टेप इन, अदरवाइज दे लेट, अगर बच्चा बदतमीजी कर रहा है तो वो करने देंगे उसको कि बच्चा है करने दो, ठीक है। हाँ फिर जब बाद में कोई उसका कॉन्सिक्वेंस निकलेगा तो फिर 4 चपेड़े करा देंगे। तो ये एक परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल ये आ जाता है। एंड द लास्ट वन जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो है बेसिकली अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग स्टाइल। अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल में ये होता है कि भाई आप ये सोच लेते हैं कि भाई बच्चे की फीस जो है वो 50-60 हजार रुपए मैंने देने हैं, तो आई हैव टू वर्क, सो दैट्स ऑल यू डू। आप चक्की की तरह बैठ के आप काम कर रहे हैं, और जो पेरेंट्स से मेरी मुराद वैसे वालिद और वालदा दोनों ही हैं। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जनरल केसेस में ये है कि वालिद साहब इतने अपने काम में इतनी चीजों में बिजी हैं कि ही हार्डली नोज के घर में क्या हो रहा है, ही डजंट नो कि बच्चा किस स्कूल जा रहा है, ठीक है। जो माँ है मे बी शी उसकी किटी पार्टी चल रही है या उसने शॉपिंग पे जाना और समथिंग लाइक दैट, बच्चा जो है वो बेसिकली मेड के हाथ में, तो यू आर टोटली अनइन्वॉल्व्ड,
ठीक है। हम्म। तो ये 4 पेरेंटिंग स्टाइल मैंने आपको बताए। ओके। सो पहले आपका नंबर अथॉरिटेरियन हो गया, फिर अथॉरिटेटिव हो गया, फिर परमिसिव हो गया, फिर फाइनली आपके पास अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल आ गया। तो पहली चीज आपने ये देखनी है, हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, रियलाइज तो हमने कर ली थी चीज के कोई हम्म। प्रॉब्लम है, अब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि आप किस तरह के इनमें से पेरेंट हैं। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी हम मैं तो इस तरह का कोई भी पेरेंट नहीं हूँ, मैं तो एक एजुकेटर हूँ। सो आप, आई मीन, यू कैन कंटिन्यू योर ट्रेन ऑफ थॉट्स, बट आई वुड लव टू नो कि आप अपने आप को कौन सा जो है ना इस कैटेगरी में आप प्लेस करते हैं। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स जब हम बात करें तो माँ और बाप दोनों एक ही स्टाइल के हों, ठीक है ना। हो सकता है बाप बड़ा शफीक और अंडरस्टैंडिंग किस्म का और माँ जो है वो 4 जूतियां भी लगा देती हो, ठीक है। दोनों का स्टाइल फर्क है। बेहतर ये होता है कि दे शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। आप एक स्टाइल को करने, देखिए अभी मैंने 4 स्टाइल आपके सामने इसलिए रखे हैं कि पहली चीज तो आप रिकॉग्नाइज करें कि यार ओके, जो मेरा स्टाइल है उसका एक कीवर्ड है, उसका एक नाम है, ठीक है, और ये बड़ी रिसर्च के बाद उसका एक नाम दिया गया। सो फर्स्ट यू हैव टू नो कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। अब मैं थोड़े से आपको इसके जो मैंने 4 स्टाइल बताए उसमें मैं आपको यही बता दूं कि उसके कॉन्स या प्रोज जो हैं वो कैसे हैं, या ये रिसर्च बेस्ड है। सिंस इस रिसर्च बेस्ड मेरी अपने एक्सपीरियंस से नहीं है तो मैं थोड़ा बहुत आपको उनको पढ़ के बता दूंगा कि जी भाई जी। ओके, जो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स होते हैं, और ये आप देख लीजिएगा कि आपके बच्चे फिर आगे कैसे निकलेंगे। अगर आप अथॉरिटेरियन पेरेंट, अगर आप बच्चे को कहते हैं कि जो मैंने कहा है उस पर बहस नहीं करनी, तुमने यही करना है, सो मोस्टली द चिल्ड्रन ग्रो अप विद लो सेल्फ एस्टीम, ठीक है। उसमें उनमें अपनी शायद इज्जत नफ्स कहते हैं, जो भी बहुत लो सेल्फ एस्टीम होगी। दे आर एग्रेसिव, दे आर हॉस्टाइल, और वो अपने ऊपर गुस्से होते रहते हैं बिकॉज पेरेंट्स ने एक्सपेक्टेशंस बड़ी लगाई होती हैं। सो पेरेंट ने कहा तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, वो डॉक्टर नहीं बना या वो एग्जाम में फेल हो गया, तो वो ही द किड विल बी बेसिकली एंग्री ऑन हिम और हरसेल्फ कि ये मेरा कसूर है, मैं इतनी मेहनत नहीं कर सका, ठीक है। हालांकि पेरेंट्स अपनी तरफ से बड़ी अच्छी चीज कर रहे होते हैं, यार हम इसे पुश कर रहे हैं, एंड देन दे डू लाई। ऐसे बच्चे जो होते हैं बिकॉज पेरेंट्स इस तरह के अग्रेसिव होते हैं, ऐसे पनिश करते हैं चीजों के ऊपर कि दे किड्स लर्न टू लाई फ्रॉम एन अर्ली एज। वो कोई चीज तोड़ेंगे तो आप उनसे पूछोगे ये आपने तोड़ी, तो वो कभी नहीं कहेंगे जी मैंने तोड़ी है, वो कोई और नाम लगा देंगे, किसी और का लगा देंगे। तो ऐसे पेरेंट्स जो हैं वो, उसका नतीजा बेसिकली ये निकलता है। सो अब ये हम अंडरस्टैंडिंग की तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना। हमने रियलाइज भी कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, अब हम अंडरस्टैंडिंग की तरफ आ रहे हैं कि अगर हम इस कैटेगरी में फॉल कर रहे थे, हमने ये चूज की थी, तो इसके रिजल्ट्स हमारे ये निकल रहे हैं। हम आते हैं अथॉरिटेटिव, जो सेकंड हमारी क्लास थी, जिसमें मैं काफी हद तक समझता हूँ कि कुछ हद तक मैं भी अथॉरिटेटिव पेरेंट्स की तरफ हूँ, बिकॉज बोथ मी एंड माय वाइफ मरियम, हमने कुछ बाउंड्रीज रखी हुई हैं कि बेटा ये है इस तरह, और वो जो बाउंड्रीज रखी है, मजे की चीज है, अथॉरिटेटिव पेरेंट विल आल्सो टेल यू कि वो बाउंड्रीज क्यों रखी है, कि भाई तुमने यहां से जंप नहीं करना। आपने सिर्फ उसे ये नहीं कहा कि भाई खबरदार जंप किया, आपने कहा तुमने यहां से जंप नहीं करना, क्योंकि अगर तुमने जंप किया तो चांस है कि तुम इस पे गिरोगे जाके एंड यू विल बी हर्ट, ठीक है। सो आपने जो आपने उसको, बात की थी कि कॉन्सिक्वेंसेस आप सामने रखो उसके जरूर। हाँ, आपने जो रूल्स बनाए हैं आपने वो एक्सप्लेन भी करने हैं। अगर आपका बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो आपने उसको तारीफ भी उसकी करनी है। ऐसे बच्चे जो हैं अकॉर्डिंग टू स्टडीज दे आर मोस्ट डेवलपमेंटली हेल्दी एंड इफेक्टिव। इस तरह के बच्चे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। दे बिकम रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स, दे बिकम सेल्फ एडवोकेटिंग, एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियंस एंड फीलिंग्स। व्हाई? क्योंकि बचपन में आपने उनका ओपिनियन लिया उनसे। अब जब वो बड़े हुए तो दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ, दे कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, बिकॉज उनके अंदर वो एबिलिटी आ गई हुई है। दे आर हैप्पी एंड सक्सेसफुल, दे आर गुड एट मेकिंग राइट डिसीजंस एंड अवॉइडिंग रिस्क ऑन देयर ओन। आपको सारी उम्र स्पून फीड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बचपन में आपने उनको डायरेक्शन सही बता दी थी, अब वो खुद से ये सारे ले सकते हैं। अब हम आते हैं कि जो थर्ड टाइप थी, परमिसिव पेरेंटिंग। परमिसिव पेरेंटिंग मैंने भी एक दो कई देखे हैं जिन्होंने मतलब मुझे ये बावर कराने की कोशिश की या यकीन लाने की कोशिश की कि दैट इज द वे टू गो, कि आप बच्चा जो सही कर रहा है चाहे गलत कर रहा है, ये उसकी डेवलपमेंट के लिए उसे करने दें। वो छलांग लगा रहा है, लगाने दें, छत से ला रहा है, लगा दें, खुद ही हर्ट होगा, खुद ही उसको समझ आ जाएगी, ठीक है। वो एक इस तरह की परमिसिव पेरेंटिंग है। अब इसमें नॉर्मली जो बच्चे होंगे दे विल स्ट्रगल एकेडमिकली। आप देख लीजिएगा, अगर आपके बच्चे, अगर आप परमिसिव पेरेंट तो आपके बच्चे इस वक्त दे विल बी स्ट्रगलिंग एकेडमिकली, दे विल हैव बिहेवियरल प्रॉब्लम्स एंड दे विल नॉट अप्रिशिएट रूल्स, बिकॉज आपने सारी उम्र रूल्स रखे नहीं उनको, आपने कहा जो करना करते रहो, तो उनके ऊपर जब रूल्स डाले जाएंगे तो दे विल नॉट अप्रिशिएट रूल्स एंड दे विल हैव बिहेवियर प्रॉब्लम्स।
दे विल से कि नहीं मैंने ये नहीं करना, ठीक है। उसके बाद लो एस्टीम एंड सैडनेस, और फाइनली इसमें हेल्थ प्रॉब्लम्स काफी होंगे भाई। आपने बचपन में बच्चे को ये कहा ही नहीं कि ब्रश करना है नहीं करना, ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम्स तो होंगे, आपने कहा कर दिया नहीं कर दी, उसकी मर्जी है, यू टेक द डिसीजन। वो बच्चा के मैंने नहीं करना, आपके हाँ बेहतरीन ना करो। आपने उसके ऊपर जंक फूड खाने के ऊपर कोई रोक टोक नहीं की बैठ के, ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा, दे विल टर्न आउट ओबीस। तो ये ओबेसिटी की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि पेरेंट्स दे जस्ट लेट द किड डू व्हाटएवर दे वांट। The way that you phrased it ना कि you let them do whatever they want, and अगर वो hurt होगा तो फिर उसको पता चलेगा कि जो है ना ये चीज़ probably उसने दोबारा नहीं करनी है। I think it seems like कि जो वो experiential learning वाला जो एक way of thinking होता है ना, उसको stretch किया गया to the point of fallacy। कि भाई आप कहते हो कि आप कुछ एक्सपीरियंस करते हो, आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस, प्रोज एंड कॉन्स आप एक्सपीरियंस करके सीखोगे, बट यू कांट डू दैट विद अ किड। यू हैव टू आल्सो एजुकेट देम कि अगर आप ये करोगे तो मे बी दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस दैट यू विल फेस दैट मे बी हर्टफुल, दीज आर द गुड थिंग्स दैट मे कम आउट ऑफ दिस। तो वो दैट फील्स अ लिटिल बिट मोर आल्सो टुवर्ड द अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग साइड ऑफ थिंग, कि जो है, जो कि इज द फोर्थ वन, तो मे बी वी आर गेटिंग टू दैट। बट आई वांटेड टू लाइक ऐड दिस हियर कि ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज समथिंग गुड कि आप एक्सपीरियंस करें और आप उसको सीखें, बट टू स्ट्रेच दैट आइडिया टू अ पॉइंट कि हर चीज को आप एक्सपीरियंस करें और फिर फिगर आउट करें कि इफ इट इज गुड और नॉट, आई थिंक दैट्स नॉट द राइट वे टू थिंक अबाउट इट। हाँ, और इसको अगर हम उस कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें अब क्या होगा कि बच्चा आपसे जो भी कहेगा ना कि भाई मैं ये वाला कोर्स करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ या ये नहीं पढ़ना चाहता, आप कहेंगे हाँ ठीक है अपनी मर्जी से, ठीक है। तो ये हम चूंकि बात चूजिंग द राइट कोर्स की बात करें तो उसमें बेसिकली ये होगा कि यू विल नॉट बी गाइडिंग द किड्स। बच्चा कहेगा मैंने ये करना, आप कहेंगे हाँ यार कर लो, और वो कहेगा नहीं आपने ये करना है तो आप कहोगे हाँ कर लो। तो उससे होगा कि ये वो 4-5 डिफरेंट कोर्सेज, एंड ही विल नॉट हैव अ सेट डायरेक्शन। देखें, डायरेक्शन सेट करना बाप का, माँ का काम है, पेरेंट्स का काम है। अगर आप एज एन अथॉरिटेटिव पेरेंट आप वो डायरेक्शन सेट नहीं कर रहे तो वो अपनी मर्जी से तो जो मर्जी करता रहे, और सिंस ही विल नॉट हैव अ गाइडेंस ही विल गेट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। और मजे की चीज ये है कि दिस इज ये जो परमिटिव पेरेंटिंग है ये आजकल काफी इन चल रही है। मतलब बहुत से स्कूल भी इसको एडवोकेट करते हैं और बहुत से पेरेंट्स भी इसको एडवोकेट करते हैं, और मुझे भी मतलब कन्विंस किया जाता है कि भाई इस तरह का होना चाहिए। बट इन माय एक्सपीरियंस जो मैंने करके देखा है कि नहीं, बच्चे को पूरा खुला नहीं छोड़ना, बिकॉज आप पेरेंट आपने कोई एक्सपीरियंस किया है, यू नो कि छत से गिरेगा तो उसको चोट लगेगी, तो व्हाई नॉट टेल द किड बिफोर हैंड कि बेटा यहाँ से आपने छलांग नहीं लगानी, बजाय इसके कि यू लेट हिम फॉल एंड देन यू नो एक्सपीरियंस एंड देन फाइंड आउट कि अच्छा गिट्टा गोटा टूट जाता है इससे। और I think maybe फोर्थ जी, सॉरी maybe it's also not about this कि जो है ना, these are the only 4 categories, maybe these are the overarching labels जो दीज आर in द category, मेजर these are मेजर the कैटेगरीज। major categories, but it doesn't have to be कि आप एक कैटेगरी में रहो और दूसरी से टोटली आप एलियनेट हो जाओ। मे बी इन सम सिचुएशंस अनदर डिफरेंट कैटेगरी माइट बी मोर यूजफुल, और आप जो है ना, इट्स नॉट व्हाट आई वांटेड टू से वाज ब्लैक एंड व्हाइट कि आपने एक कैटेगरी चूज करनी है, द अदर वन इज नॉट गोना बी हेल्पफुल इन एनी केस एट ऑल। इज दैट हाउ इट इज? वेल आई वुड एक्चुअली से कि नहीं, हर कैटेगरी अपने आप को पूरा एक एनकम्पस करती है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं। उसमें ऑलरेडी ये डिफाइंड है कि आपने, अगर आप अथॉरिटेटिव पेरेंट है तो उसमें ऑलरेडी डिफाइंड है कि अथॉरिटेटिव पेरेंट जो है वो उसको क्या क्या करना है, कब एक्सपीरियंस करने देना है बच्चे को और कब उसको गाइड करना है, ठीक है। जो परमिसिव पेरेंटिंग है उसके भी ऑलरेडी हैं। अब ये वो चीज है जो कि मतलब जस्ट गूगल पेरेंटिंग स्टाइल्स एंड यू विल गेट ऑल ऑफ इट। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग का एक हिस्सा है कि हम उसको पहले एक बार पढ़ लें तो ये किस तरह के पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं, और फाइनली जो हमारा अनइन्वॉल्व है उसके कॉन्सिक्वेंसेज वगैरह, बेसिकली लो सेल्फ एस्टीम, they perform poorly in school, obviously, behavior problems, they are generally unhappy kids. Uninvolved parenting इस तरह भी हो सकती है कि आप काम में बहुत बिजी हैं और इस वजह से भी हो सकती है कि भाई ओके मे बी यू आर एडिक्टेड, सब्सटेंस अब्यूज है, या फिर आप और कोई आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं कि आप अपने बच्चे को पर तवज्जो नहीं दे रहे, यू आर डिप्रेस्ड योरसेल्फ, कोई उसकी वजूहात भी हो सकती है। मगर चीज ये है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसका असर डायरेक्टली आपके बच्चे के ऊपर हो रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो हमने ये 4 की 4 जब ये कर ली, अब हमारी हमने इसके प्रोज एंड कॉन्स भी देख लिए, अब हमारे पास जो फाइनल चीज है हमने अंडरस्टैंड कर लिया। नाउ वी विल कम टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट, जो कि आपका एक्चुअल क्वेश्चन था कि भाई हाउ, ये आप कैसे बैठ के जो है ये वो सारी चीजें कर रहे होते हैं। वैसे उस क्वेश्चन को जरा दोबारा याद दहानी के लिए थोड़ा सा रिपीट कर दें, थोड़ा सा, ताकि एवरीबॉडी नोस व्हाट द क्वेश्चन वाज।
हाँ उसमें एंड आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग अ लिटिल बिट मोर एज वेल कि हाउ यू ट्रीट एजुकेशन। आपका जो मैंने वे ऑफ डीलिंग मैंने देखा है कि यू डोंट थिंक अबाउट एजुकेशन जस्ट समथिंग जो कि स्कूल में ली जा सकती है, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में ली जा सकती है। यू ट्रीट यू हैव सॉर्ट ऑफ एम्बॉडीड लाइफ लॉन्ग लर्निंग फिलोसफी कि यू फाइंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज ऑल अराउंड you. So you don't just find courses for your kids, you also find courses for yourself. So circling back to that question, okay, what are some of the maybe like good experiences that you've had in any extracurricular activities जो किसी और service provider के आपने इल्म के लिए या अमन के लिए देखे हैं? What are some of the learning programs that you have found useful for yourself? So maybe if we could talk a little bit about that. अच्छा, ठीक है। जहाँ पे प्रोग्राम्स की यूजफुलनेस ये आपका क्वेश्चन था, मैं आपको बताता हूँ कि हाउ डू आई गो अबाउट इट। मैं एक थोड़ा सा पहले जो भी मैंने अब सारी बात की वो जरा थोड़ी किताबी बातें थी, रिसर्च बेस्ड थी चीजें, ठीक है। अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बेस्ड कुछ चीजें बताने लग पड़ा हूँ कि हाउ डू आई गो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। देखिए, चीज ये है कि हर पेरेंट, में सिर्फ अपनी बात नहीं करता, हर पेरेंट के अंदर कोई ना कोई उसकी स्ट्रेंथ्स होती है, कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। ऑब्वियसली आप मतलब जिंदगी आपने गुजारी है तो कई चीजें आपको आती होंगी, आपने जो पढ़ा है वो आपको आता होगा, जो आपकी जॉब है आपने आपको आता होगा। सो मे बी यू आर हाउस वाइफ, हाउस टेक केयर करती हैं आप, और यू नो यू आर गुड इन कुकिंग और समथिंग लाइक दैट, दैट्स अ स्किल, ठीक है ना। मतलब मैं जब पढ़ने गया था तो मुझे अंडा बॉयल करना आता था, बट देन आई स्लोली लर्न दैट। सो बेसिकली एक तो आप देखते हैं कि आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स क्या है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि बच्चे जो है ना वो बेसिकली दे आर द नेक्स्ट वर्जन ऑफ यू। तो मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं वर्जन 1.1 था, तो अब मेरा जो बेटा है अमन वो 1.2 है, और इल्म जो है वो 1.3 है। जैसे सॉफ्टवेयर की वर्जन अपडेट होती हैं तो हर वर्जन में आप बेहतर खूबियां, बेहतर उसमें डीबगिंग करके साथ लेकर आते हैं। सो होता यह है कि अगर मेरे अंदर एक कोई खूबी है, कोई चीज मुझे आती है, तो मेरी कोशिश ये होगी जो मेरी औलाद सॉफ्टवेयर वर्जन 1.2 जो है उसमें वो खूबियां हो और उसके अलावा उससे बेहतर भी हो, ठीक है ना। सो पहली चीज तो आप ये कर रहे हैं कि जो चीजें आपको आती हैं वो आप उनको थोड़ा बहुत सिखाते इस तरह नहीं कि आपने कोई टीचिंग क्लास उसकी रख दी बैठ के, आप करते हैं। देखें, आई गिव यू एन एग्जांपल कि भाई मुझे थोड़ा बहुत म्यूजिक का शौक था, पियानो बजाने का या गिटार बजाने का, ठीक है। अब इल्म वाज आई थिंक हार्डली 2 or 3 years ओल्ड और समथिंग लाइक दैट। तो मैंने उसके सामने थोड़ा बहुत पियानो शानो सा हल्का फुल्का बजाया, और वो मेरी गोद में बैठ के उसके ऊपर हाथ मारने लग पड़ा। अब चीज ये है कि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल पियानो प्लेयर, तो मैंने कहा कि ये तो मैंने इसको सिखानी है। अब मैंने सिखाने के लिए मुझे खुद सीखना है, सो आई ज्वाइन क्लासेस फॉर पियानो, ठीक है। सिमिलरली देर जिस तरह अभी आजकल मैंने उसको डाटा एनालिटिक्स की एक स्कूल में उसके हो रही है और मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, आई एनरोल्ड इन अ कोर्स माई सेल्फ। अब मैंने उससे कुछ सीखा तो मैंने अब आगे वो नॉलेज उसके आगे ट्रांसफर कर रहा हूँ। सो पहली चीज ये है कि इफ देयर इज समथिंग दैट यू आर गुड एट नेचुरली, तो वो तो बड़े आराम से अपने बच्चे के आगे पास ऑन कर सकते हैं। अगर यू आर अवेयर ऑफ समथिंग बट यू आर नॉट गुड एट इट, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन अ कोर्स और समथिंग, क्योंकि आप पहली चॉइस आपकी ये है कि आप खुद अपने बच्चे को कोई चीज सिखा सकें। यू स्पेंड द टाइम विद योर चाइल्ड, चाहे प्रोग्रामिंग अच्छा कुछ भी है। मेरा प्रोग्रामिंग से बैकग्राउंड है, मगर आई एम नॉट अ वेरी गुड प्रोग्रामर। मैंने कोई बहुत ज्यादा थोड़े बहुत बनाए भी होंगे, मगर कोई बहुत ज्यादा मैंने प्रोग्रामिंग के ऊपर काम नहीं किया हुआ, मगर आई अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सो अब होता यह है कि मैंने पियानो के लेसन लिए और फिर उसके बाद मैंने इल्म को पियानो सिखाना शुरू किया जिस हद तक मुझे आता था। जहां पे मैंने ये देखा कि ओके अब मेरी बस होगी, इससे आगे मैं नहीं उसको करा सकता, देन व्हाट आई डिड वाज आई सब्सक्राइब टू अ वेबसाइट जो कि मतलब प्रोफेशनली साथ साथ उसमें ऑटोमेटेड कोर्सेज वगैरह हैं वो साथ कराती है। तो हम दोनों मिल के बैठ कर रोजाना आधा घंटा रात को वो कर रहे होते थे। सेम विद प्रोग्रामिंग, मैंने उससे प्रोग्रामिंग सिखानी शुरू की, और जहां पे मेरी बस होगी कि यार ओके ये वाली चीजें मुझे नहीं आती, देन आई लुक्ड अराउंड कि ओके ये भी नहीं जरूरी नहीं कि कुछ चीजें आती भी हों, मगर आपके पास आप ये समझने ओके अब मेरे पास मजीद टाइम नहीं है, मैं आई कैन नॉट स्पेंड टू मच टाइम ओवर इट, या रोजाना के हिसाब से नहीं कर सकता। देन यू स्टार्ट लुकिंग अराउंड कि ओके यही चीज कोई और बेहतर तौर पे कौन करा सकता है। देन यू लुक फॉर दीज कोर्सेज जो कि हमारी टॉपिक का डिस्कशन है, डिस्कशन ऑफ द टॉपिक। अब हाउ टू चूज द राइट कोर्स। देखें, पहली चीज तो आपने ये करनी है कि आपने बच्चे को एक्सपोजर देना है। मैंने कहा ना, आप खाना अच्छा बनाते हैं तो किचन में साथ बिठाएं।
इल्म ने कथक किस तरह सीखा कि माय वाइफ मरियम शी वाज लर्निंग कथक, वो घर में थोड़ी प्रैक्टिस कर रही थी, तो इल्म ने देखा, इल्म ने भी साथ साथ थोड़ा बहुत उसने साथ साथ कॉपी करना शुरू किया, तो आपको पता लगा कि बच्चे को इस चीज का शौक है। सो पहली चीज आपने इसको एक्सपोजर सारी चीजों का देखना है आपने दिया, जब आपको ये पता लगा कि ओके इसमें से फलां फलां चीज पे बच्चा जो है वो बड़ा इंटरेस्टेड है। अब जब इंटरेस्टेड है तो आपने कोशिश ये करनी है बीइंग अ पेरेंट के आप खुद जितना नॉलेज पास ऑन कर सकते हैं, नंबर वन प्रायोरिटी ये है कि आपने खुद करना है। और उसके बाद तो नंबर 3 पे ये चीज आती है, अगर आप खुद नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, या फिर आपकी एक लेवल है उससे आगे आप लेकर नहीं जा सकते, तो देन यू लुक फॉर आउटसाइड कोर्सेज। आउटसाइड कोर्सेज जब आप देखते हैं तो मेरी पहली कोशिश ये होती है कि मतलब कोई कोर्स है उमन फेसबुक पे आ गया या इस तरह किसी तरह चैनल पे मुझे बता दिया गया, और उसमें उन्होंने बड़ा डिस्क्रिप्टिव किस्म की चीज लिखी होती है कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कौन सी क्या क्या पढ़ाओगे उसमें, स्क्रैच, क्या स्क्रैच, क्या क्या स्क्रैच, शुड आई स्क्रैच माई सेल्फ, व्हाट्स हैपनिंग, क्या है उसके अंदर। सो द फर्स्ट थिंग आई डू इज आई राइट बैक टू देम, इफ आई लाइक द टाइटल ऑफ अ कोर्स आई राइट बैक टू देम एंड आई से कि इस कोर्स का जो कुछ आप पढ़ाएंगे, जो कोर्स वर्क है, जो करिकुलम है, वो मुझे जरा भेज दें, ठीक है। आप कोर्स वर्क देखें, पहली चीज तो ये कि जो सीरियस होगा ना, ऐसे जो सर्विस प्रोवाइडर जो कि बच्चों को पढ़ाने की सर्विस दे रहा है, जो सीरियस होगा उसने कोर्स वर्क तैयार किया होगा, वो फिल्बदी नहीं पढ़ा रहा होगा। तो जब आपको कोई इनकार कर देता है कि नहीं जी वो हम फलां चीज करा देंगे, ये कर देंगे, और आपकी कंप्लाई नहीं करता, तो स्टे अवे फ्रॉम दैट स्कूल और फ्रॉम दैट सर्विस प्रोवाइडर, बिकॉज उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया हुआ। सो यू कम अप विद समबडी, आप उनसे कहेंगे जी आप मुझे अपना कोर्स वर्क दें, कोर्स वर्क देखें, उसके मुताबिक देखें कि आपका बच्चे के लिए कोर्स वर्क ठीक है भी कि नहीं है। नहीं समझ आती तो उस कोर्स में जो आप रिश्तेदारों में कोई एक्सपर्ट है तो उससे पूछें, कोई प्रोग्रामर है रिश्तेदार में, उससे पूछना कि यार ये मेरे बच्चे की एज 3 साल है, ये करा रहे हैं, ये स्क्रैच लेवल 3 करा रहे हैं, शुड आई और शुड नहीं। वो आपको कहेगा नहीं यार इस स्टेज पे इसको स्क्रैच जूनियर कराओ, तो आपकी समझ में एक चीज आ जाएगी। तो वो आप that is how I go about it. I take their coursework, I go through it, and then I think कि अच्छा मुझे इसको कराना है, then I put it in front of इल कि बेटा ये कोर्स अच्छा है, ये अच्छा है, which one do you want to do? Last time he said कि जी मैंने माइनक्राफ्ट एजुकेशन वाली माइनक्राफ्ट की प्रोग्रामिंग करनी है, तो I knew कि okay he likes that, so I sought that course out. मैंने गूगल किया कि माइनक्राफ्ट प्रोग्रामिंग, पता लगा एक हो रही है इस्लामाबाद में, एक पार्टी है वो जो ये करा रही है, तो उसके थ्रू कर दिया। तो समटाइम्स योर चाइल्ड सजेस्ट मैं ये करना चाहता हूँ एंड यू फैसिलिटेट, समटाइम्स यू फाइंड द कोर्स योरसेल्फ एंड देन यू पुट इट इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड कि इनमें से क्या करना चाहते हो। Well, I think at the starting of all of this is something that you stressed upon a lot is कि a parent has to get involved, कि पहले आपको खुद समझना है कि आपने क्या चीज़ सिखानी है और फिर आपने उससे related कोई कोर्स ढूंढना है। So and this is something that you have also mentioned in our WhatsApp community group as well, कि जब किसी ने पूछा कि कौन सी educational kit या फिर एक specific educational kit अगर वो is it good enough as well कि वो अपने बच्चों के लिए purchase करे, तो I think उसके अराउंड भी आपका जो है ना comment यही था कि if you can spend a couple of minutes or a couple of hours every week with your kid, then it's like totally worth buying. So would like to know a little bit more about that from your past experience as well, कि आपने इल्म के साथ कौन सी educational kits के around में भी आपने time spend किया हुआ है, where to procure that, one of them is Microbit, and how has that maybe helped along his journey, या फिर locally if there are any other service providers जहाँ से parents को useful educational kits मिल सकती हैं. So can you comment a little bit about that? दो तरह की चीजें होती हैं जो बच्चे को नॉलेज जहां से आ सकता है, वी टॉकिंग अबाउट मटेरियल्स, तो अब मैं कोर्सेज की बात नहीं कर रहा, मैं मटेरियल्स की बात कर रहा हूँ। तो एक तो बुक्स हो गई और दूसरा जो है आपकी ये एजुकेशनल टॉयज या एजुकेशनल किट्स वगैरह है, ठीक है। अब इसमें बेसिकली मेरे लिए बहुत चीज इंपॉर्टेंट है कि मतलब कि ठीक है आई गो टू अ बुक शॉप और मुझे हर तरह की बुक फैसिनेट कर रही होती है, तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि बुक शॉप में जो चीजें मैं आई एम ऑलवेज थिंकिंग विद माय किड्स पॉइंट ऑफ व्यू कि यार उसको क्या इंटरेस्ट है, वो यार ये चीज के लिए अच्छी है, एंड मे बी आई डोंट बाय इट बट व्हाट आई डू इज आई ऑलवेज टेक अ पिक्चर ऑफ दैट बुक एंड देयर इज अ सेपरेट फोल्डर ऑन माय मोबाइल जिसमें बुक्स का फोल्डर है जिसके अंदर मैंने वो सारी डाली हुई है। सो टर्न बाय टाइम हो ये भी रहा होता है कि मतलब कि इल्म इज टू इन्वॉल्व इन अदर थिंग्स कि अभी आप नहीं कर सकते, बुक घर लाके रखने का फायदा कोई नहीं, तो मैंने उसकी तस्वीर रखी होती है कि ओके एट सम स्टेज जब ये करना चाहेगा तो मैं इसको ये वाली बुक रिकमेंड कर सकता हूँ या ये मैं खरीद सकता हूँ। सेम गोज विद
किट्स, तो मैंने अली एक्सप्रेस पे और इस तरह की चीजों पे मैंने वो अपनी विश लिस्ट जो है वो सेव की हुई है कि एट सम स्टेज ही माइट वांट टू लर्न दिस थिंग, तो ये किट बड़ी अच्छी है, इसमें वो मैंने सारी की होती हैं। अब ये चीजें मैं बाय करता हूँ। अगेन जो मुझे सवाल किया गया था वो ये किया गया था कि क्या हम बच्चे को 70-80 थाउजेंड रुपीज या लाख 1.5 लाख का कोई ब्लॉक्स का सेट है लेगो का, वो हम खरीदें और ना खरीदें। तो बात यही है कि देखें, आप बुक एक ले आए और बच्चे को थमा दें, उसके बाद आप उसके साथ बैठ के वो टाइम स्पेंड नहीं कर रहे पढ़ने का, आप उसको एक किट ला दें, उसको थमा दें और वो टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, मे बी योर किड विल बी एबल टू डू थिंग्स, मे बी ही विल बी और शी विल बी एबल टू मेक दैट किट, मगर उसकी लर्निंग वो नहीं होगी या वो इतनी चीजें उसमें मिस आउट कर जाएगा जो कि अगर आप साथ बैठे होते तो शायद आप अपने तजर्बे की बिना पे उसे 4 चीजें और ही बता सकते थे। ठीक है ना? लाइक यस्टरडे इल्म, आई वाज टीचिंग पाइथन टू माय किड इल्म, और उसमें CSV फाइल थी। अब मुझे पता है कि अगर मैंने उसको खाली बुक थमा दी होती तो वो CSV फाइल बनाता और उसको उठा के ले आता, उसको ये ना पता लगता कि भाई ओके CSV से बनता क्या है, कि इट्स कॉमा डिलिमिटेड, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ठीक है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन चूंकि आपको खुद भी होती है तो आप वो उसको सप्लीमेंट कर सकते हो उसकी इन्फॉर्मेशन को, और अपने तजर्बे से और अपनी इंटरेस्टेड बातें, एंड दैट्स स्पेंडिंग अ वेरी समझ लेंगे प्रोडक्टिव टाइम विद योर किड, कि आप उससे बैठ के शेयर कर रहे हैं। Something similar he pointed out to me as well. He told me the full form of SVG, and I also did not know. And I also get to like very often learn a lot from Ilm. जो Turbo Warp वाला जो version वो use कर रहा है for creating his Scratch projects, I did not know कि Turbo Warp is also something. So as an educator, I've also like experienced this कि मुझे Ilm से कई दफा बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं. Another moment that was really remarkable for me to see was when he came to an IoT event over here in NICL in LUMS, और यहाँ पे जो academics blog है वहाँ पे undergrad बच्चे बैठे हुए हैं और वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक IoT प्लेटफॉर्म कोड वो एक लिख रहे हैं. So I was like, I did have this in at the back of my mind कि भाई Ilm would perform really well in such an activity, but what I had not anticipated was कि जब वो host पूछेगी कि कौन कौन अपनी activity कर चुका हुआ है, the only hand raised was Ilm's hand, and I could not believe कि जो है ना वो undergrad के बच्चे जो है ये activity नहीं कर पा रहे हैं और Ilm ने ये activity complete कर ली है. And you did something similar with Ilm at home as well. वो आपने इससे पहले की थी या फिर इसके बाद की थी? And is there any special type of equipment that you needed to use that? So could you share a little bit about that? When it comes to IoT, Internet of Things, मजे की बात है कि मुझे भी कुछ पता नहीं था कि IoT क्या चीज है. ठीक है, तो अगेन अब ऐसी सिचुएशन में जहां पे आपने सुना है कि यार ओके IoT भी कोई चीज होती है, बट यू डोंट नो कि यार वो क्या चीज होती है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप या तो खुद उसको पहले सीखेंगे, और इस केस में मैंने ये सोचा कि ओके यार थोड़ा बहुत मुझे पता है, ज्यादा नहीं पता, तो आई विल लुक फॉर समबॉडी एंड आई फाइंड समबॉडी, और वो आपके ही स्टेम एजुकेटर्स में टीचर हैं, अतीब. तो अतीब ने वो बेसिकली उसको थोड़ा बहुत एक बैकग्राउंड वीमॉस का ESP6822 जो भी वो है उसका सारा उसने दिया, तो मतलब वो सारी काविशें उनकी थी. Ilm is a fast learner. He gets very interested in these kind of things. So yes, he did that. आपको याद है एक बार ऐसा भी हुआ था कि I deliberately let Ilm fail. That was you remember जब इसने स्क्रैच का जब आई थिंक फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ किया था, लेवल 1 किया था, तो देयर वाज एंड ऑफ द जो कोर्स होता है एक प्रोजेक्ट होता है. ठीक है, एंड सो शुजा साहब ही सेट कि भाई ये 2 वीक्स हैं, इसके अंदर ये प्रोजेक्ट करना और समथिंग लाइक दैट. एंड आई शुरू में मैंने इल्म को बताया कि भाई अच्छा 2 वीक्स में आपने प्रोजेक्ट करना है, एंड ही डिड नॉट टाइम नहीं उसने उसके ऊपर लगाया, ही डिड नॉट डू दैट प्रोजेक्ट और समथिंग लाइक दैट. अब मुझे भी पता लगा ओके डेडलाइन सर के ऊपर है, इसने करना है, बट आई डिड नॉट पुश हिम. मैंने उसको सिंपली बता दी कि भाई फलां दिन ये डेडलाइन है, ये आपका प्रोजेक्ट होना है. एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड वाज कि जब वो प्रोजेक्ट दिखाने का टाइम आया तो ही हैड नॉट डन द प्रोजेक्ट, ही डिड नॉट डू इट. सो आई डेलिबरेटली लेट हिम फेल. ठीक है, सो दैट देखें मुझे कोई खुशी नहीं हुई कि मेरा बच्चा किसी चीज में फेल हो, मगर बच्चे को ये सिखाना कि किसी चीज की जीत में कितना मजा है, उसको ये पता होना चाहिए कि हार में आपके साथ क्या होता है. तो एट टाइम्स अ गुड थिंग अगर आप लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर वो आपने उसको अपनी तौर पे कोशिश कर दी, उसको बता दिया कि भाई ओके ये आपने इस तरह करना है, और वो स्टिल
इज नॉट डूइंग इट, तो फिर वो एक्सपीरियंस बेस्ड आ जाता है, जिस तरह वो परमिसिव पेरेंटिंग है कि ठीक है आपने उससे कहा ठीक है भाई ऑन योर ओन कर लो, और इनफैक्ट इन द बैक ऑफ द माइंड आई वांटेड हिम टू सॉर्ट लाइक नॉट परफॉर्म इन दैट प्रोजेक्ट बिकॉज द लेसन वी लर्न फ्रॉम दैट वाज मच मोर इम्पोर्टेंट देन एक्चुअली डूइंग दैट प्रोजेक्ट कि आपने टाइम पे करनी है। किसी की भी इमोशनल हेल्थ के लिए जो है ना, इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट टू लेट दैट पर्सन लाइक हैव दिस एक्सपीरियंस के हाउ डज इट फील टू गेट अ हिट and how to counter that, how to build that emotional strength ke you can like fall down and then you can still get up. So yeah, of course there is like a whole range of things that we can talk about somebody's emotional well-being and mental well-being as well. यहाँ पे हम mostly जो है ना उनके technical skills के बारे में बात कर रहे हैं. Maybe we'll invite you again for another session. We have already gone over time, but there have been like a few questions and have a few questions on my mind as well. पहले तो किसी ने question किया कि अगर बच्चे जिद्दी हो तो how to deal with these kids. I believe this question would be on every parent's mind. So क्या वो authoritarian, authoritative, permissive या uninvolved parenting में तो I think वो नहीं आता. But what is your take on this कि अगर बच्चे जिद्दी हो? पहली चीज तो ये देखे ना कि बच्चे जिद्दी हुए क्यों हैं, ठीक है ना, मतलब वो देखें पता क्या बात क्या है कि जब मेरी औलाद हुई ना तो मैं पहले बड़ा मेरे जहन में ये आता था कि यार बच्चा जब पैदा होता है ना तो उसके वो प्लेसेंटा के साथ एक अदद वो भी अटैच होना चाहिए यूजर मैनुअल के बच्चे को आपने अब करना किया आ तो गया लर्न थ्रू एक्सपीरियंस, तो आप खुद एक अदद मैनुअल बन जाते हो, ठीक है। तो देखें अगर बच्चा जिद्दी है तो उसका मतलब यह कि अभी तक आपने वो चीजें उस तरह रिकॉग्नाइज नहीं की कि आपका पेरेंटिंग स्टाइल क्या होना चाहिए और आप जिस तरह लेके जा रहे थे वो उस लेवल पे पहुंच गए। सो वंस यू चेंज, आपने बच्चे को चेंज नहीं करना। प्रॉब्लम ये है ना कि हम बच्चे को चेंज करेंगे, बच्चा जिद्दी है बच्चे को कुछ करो, नहीं, यू नीड टू चेंज योरसेल्फ। आपने अपना स्टाइल चेंज करना है, आपने उस तरह का पेरेंट बनना है कि बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता अपनी बाउंड्रीज या चीजों की समझ आती जाए। अब हमारे केस में इफ आई से कि ओके जी आई एम एन अथॉरिटेटिव पेरेंट, तो मैं क्या करता हूं कि ओके अगर वो जिद कर रहा है तो आपने उसकी जिद के ऊपर नहीं करना, आपने उसे कह देना कि यार ये चीज है ऐसे हो रही है, अगर आप ये करोगे तो ये चीज, आपने तो समझा दिया कि यार ये चीज गलत है। अगर वो स्टिल इफ ही स्टिल डूइंग इट तो आप उसे पुछ नहीं कर रहे, या यू डू नॉट। देखें परमिसिव पेरेंटिंग में ये चीज होती है कि मतलब आपने बच्चे के ऊपर ये भी लगा दिया कि भाई ओके तुमने 3 घंटे से ज्यादा अपने मोबाइल के ऊपर नहीं बैठना, ठीक है। 3 घंटे बाद आपने फोन उससे उठा लिया और उसके बाद बच्चा जो है ना वो उसकी आंखों में आंसू आए, वो रोने लग पड़ा, या ही स्टार्ट्स बेगिंग यू और समथिंग, एंड यू कहा अच्छा यार बच्चा ही तो ना, आपने दे दिया वापस, ठीक है। दैट्स परमिसिव पेरेंटिंग। अथॉरिटेरियन पेरेंट में मेरे साथ क्या होता है कि मैंने उसको एक दे दिया कि भाई ओके इतने घंटे आप कर सकते हैं, उसके बाद मैंने उसको एक हल्की सी वार्निंग दी, उसके बाद मैंने उसको सेकंड टाइम वार्निंग दी, द थर्ड टाइम आई टेल हिम द कॉन्सिक्वेंसेस कि भाई अगर आप ये नहीं करोगे तो ये होगा, ठीक है। उसके बाद वो जितनी मर्जी जिद कर दे, अगर वो तब भी नहीं करता तो मैं उसका वो टैब या उसका फोन या जो भी चीज है I'll pick it up, I'll take it from him and I'll keep it away, ठीक है। उसके बाद but you do explain the consequences before and I explain the consequences, और फिर मैं वो फिर मैं उससे चूकता नहीं हूं कि अब उसकी आंखों में आंसू आ रहे तो मुझे नहीं करना चाहिए, मेरा दिल नहीं पसीजता, मैं वो कर गुजरता हूं। I do that and then most of the time what happens is के वो तो रोएगा, पहले जिद करेगा, उसके बाद रोना शुरू कर देगा, बेबसी के आंसू उसके आएंगे टप टप करके, मेरे दिल पे भी गुजरी, पर मैं कहता हूं कोई गल नहीं। उसके बाद वो he'll come and he'll say sorry, and that is another thing that I want to address. A child saying sorry means nothing, and I've told my kid that कि मैंने दोनों बच्चों को ये बताया हुआ कि मतलब कि your sorry does not mean मुझे sorries चाहिए ही नहीं। I don't want sorries, I don't want apologies, I don't want my child to apologize to his father or mother. I want practical action, भाई जो आपसे कहा था आप वो ना करो, अब नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। तो मैंने उसको समझ लें, लास्ट टाइम मैंने पियानो के लिए उसका, मैंने पियानो की क्लास में पहुंच जाओ, ठीक है, मैं 5 मिनट वेट कर नहीं आया, मैं दोबारा गया, उसको बताया मैंने बेटा पियानो की क्लास है तो आप उसके ऊपर बैठे हुए हैं, अभी भी टैब के ऊपर बैठे हैं तो आ जाओ करते हैं। He did not come. The third time I told him कि भाई ओके अगर आप अगले 5 मिनट में नहीं आए तो यू नो फिर हम पियानो वगैरह नहीं करेंगे और I'll take your tab away. He did not come. So I came back, I took his tab और मैंने उठा के रख दिया। वही वो आंसू शांसू कर पूरा ड्रामा सारा कुछ चल पड़ा। और फिर ऑब्वियसली मतलब फिर बाद में जब उसको मेरी वालदा ने समझाया, दादियां तो होती ऐसी हैं कि कोई नहीं बच्चा है छोड़ दो, चलो डैडी से सॉरी कर लो, तो ही केम टू मी एंड ही सेड आई एम सॉरी एंड आई सेड नो, बेटा मुझे सॉरीज नहीं चाहिए,
You don't need to say thank you, and I don't actually even believe, being a parent, कि आप बच्चा मुझे thank you कहे. I don't believe in thank you. I don't believe in apologies. I want you कि यार जो मैंने कहा है अब वो आप next time जो है वो ऐसा ना करो. Show it by your actions. So अब next time से क्या हो रहा है कि मैं उसको कहता हूँ तो वो एक दो calls के बाद वो पहुंच जाता है. वो उसको पता है कि okay इसका consequence है. So that is what you should be doing. I think at the crux of behind like a lot of the things that you do is you treat your kids like thinking human beings. You don't think कि जो है ना ये तो बच्चे हैं ये तो ऐसे ही करेंगे. You let them know. You do possibly consciously perceive this कि जो है ना उनकी information limited हो सकती है, उनके experiences limited हो सकते हैं, लेकिन उनका जो thinking process है that would quite be like maybe like yours or mine. So Right. you or that's how I as an educator also like treat a lot of my students. Many people tell me कि जो है ना ये जो classes में punctuality वाली जो चीज है या फिर taking care of their own schedule of learning, this is not something that you can expect from a 6-year-old or an 8-year-old or a 12-year-old. But what I believe is you're not giving these kids enough credit. They can possibly learn these skills if you give them the opportunity to learn these skills. So bringing this conversation to a close, you mentioned that Ilm started to learn a lot of things maybe even at age 2 as well. So we do get this question कि some of the parents are concerned कि age 2 or 3 पे उन्होंने possibly अपने बच्चों को क्या सिखाना है. So what would be your advice to some of the new parents who are looking for some learning activity for their 2-3 years, or do you think that such a young age is also even maybe like enough for a parent to be concerned about these matters? नहीं, मैं बिलीव ये करता हूँ कि 2-3 साल बच्चे को आपने सिखाना कुछ नहीं, आपने उसको एक्सपोजर देना है. ठीक है. Okay. सिखाने में और एक्सपोजर देने में बड़ा फर्क है. एक्सपोजर जो है वो एक बहुत वाइड चीज है. ठीक है. आप कभी उसको जिस तरह मरियम इज प्रैक्टिसिंग कथक तो ओके उसको एक्सपोजर हो रहा है. मरियम इज कुकिंग और समथिंग तो उसको एक्सपोजर हो रहा है. ठीक है. मरियम वुड लेट हिम असेंबल द बर्गर्स तो उसको एक एक्सपोजर हो रहा है. मैं पियानो उसके आगे बजा रहा हूँ तो उसको एक्सपोजर हो रहा है. आप वो सारी चीजें उसको एक्सपोजर देते हैं एंड देन यू पिक अप कि ओके किस चीज में उसको इंटरेस्टेड है. वो खुद ही आपके पास आएगा कि आई वांट टू डू दैट टू. और जब वो एक बार उसको एक्सपोजर हो जाता है देन यू सॉर्ट लाइक फैसिलिटेट दैट थिंग. सो इट डज नॉट मैटर कि आप प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है. आपके जिस तरह मैंने कहा कि आपकी कोई भी स्किल्स हो सकती है, उस चीज का आप एक्सपोजर बच्चे को दें. तो आप 2-3 साल के बच्चे को किसी कोर्स में नहीं करा रहे, आप उसको सिंपल एक्सपोजर दे रहे हैं चीजों को. So we started off this conversation with this question in mind: what would be the most appropriate learning track for your kids? Or usme matlab it could be courses, it could be educational kits, but what you have sort of presented us is ke isse pehle bhi there are so many other things that we can explore. Firstly, parents should definitely get involved as well, and they should recognize ki unka parenting style kya hai. Secondly, before even going to educational kits, maybe jo aapne books ki jo aapne baat ki hai कि how you have a separate folder of the types of books that maybe you would want for yourself or for your kids, and then you also get involved with your kid to like read those books as well. That's also beneficial in a huge way. So maybe before going to any of the service providers के वो कोई artificial intelligence का या फिर programming का course दे दें, a parent definitely has to get involved first, and that will provide a very solid foundation for the kids. So thank you for so much for such like profound discussion on parenting styles and sharing your experience with us. We definitely have like a huge list of questions, but we're short on time. We've already gone way above our time, and would love to have you again for such a conversation. And just thank you so much for being a part. Quickly just answer ये 2-3 क्वेश्चन मुझे जो पूछे हुए थे मैं आपको कहता हूँ. ये ग्रुप में किसी ने पूछा आर योर किड्स लर्निंग इन स्कूल और डू वी हैव टू जॉइन अदर सोर्सेज कि बच्चे स्कूल में लर्न करें या फिर कोई और हमें सोर्सेज ढूंढने चाहिए. तो बात यही है कि आप स्कूल को वैल्यूएट करें. अगर स्कूल जो है कुछ चीजें जो नहीं करा रहा और आप चाहते हैं कि वो करे तो फिर यस यू हैव टू लुक एट अदर सोर्सेज. खुद नहीं करा सकते तो फिर आउटसाइड कोर्सेज आप देखें. जो भी आप कोर्स प्रोवाइडर चूज करें उसका करिकुलम पहले देखें और उसके बाद करें. बहुत हद तक कोशिश ये करें कि आप खुद लर्न करें और अपने बच्चे को बैठ के सिखाएं. काइंडली गाइड मी विच स्किल्स शुड आई टीच टू माय 6-year-old गर्ल. अगेन देखें बड़ा सिंपल से मैंने बता दिया आपको. आप कोई से नहीं सिखाएंगे, आप ये देखेंगे उसको खुद से किस चीज का शौक है. जिस चीज का शौक है उसमें बीइंग अ पेरेंट आपका काम जो है वो यू आर नॉट द टीचर एज पर से, आपने उसको फैसिलिटेट करना है.
ठीक है। अगर वो पियानो या गिटार बजाना चाहता है तो गिटार ला के देना बाप का माँ का वो काम है आपका। आप उसको जितना सिखा सकते हैं वो आपका काम है, आप सिखा दिया, और उसके बाद किसी स्कूल में अगर वो बेहतर तौर पे सीख सकता है तो वहां पे कराना वो आपका काम है। सो अगर आपकी बेटी जो है वो 6 साल की है तो आप ये देखेंगे उसे किस चीज में इंटरेस्ट है और उसको फैसिलिटेट करें। अगर वो कुकिंग में इंटरेस्ट है तो उसको कोई कुकिंग शुकिंग के कोर्सेज वगैरह होते हैं वो आप कराएं, पहले खुद कराने की कोशिश करें, नहीं तो आगे। Which school is better for students these days for learning computer programs for grade 6 and 3? Again, मतलब ये तो स्कूलों के ऊपर ही डिपेंड करता है, इसका मैं क्या आपको जवाब दे सकता हूँ। मगर आई नो कि मेरे बेटे का स्कूल है वो अच्छा है, कोई बहुत अच्छा नहीं है, स्टेम के हिसाब से वो नहीं कर रहा। मगर हाँ, स्कूल के हिसाब से हमने एक चीज रखी हुई है, वी डिड नॉट गो फॉर द मोस्ट एक्सपेंसिव स्कूल बिकॉज के जी सब कुछ है वहां पे, बिकॉज वी नो के जो स्कूल सिखा रहा है उससे ज्यादा कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग या लर्निंग जो है वो मैं खुद कर सकता हूं। तो मेरे पास अगर ये टाइम है तो आई विल गो फॉर अ स्कूल विच इज मीडियोकर स्कूल इन दैट सेंस कि मतलब बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, अच्छा स्कूल है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। मे बी दे आर नॉट टीचिंग एवरीथिंग, मे बी वहां पे लंच नहीं सर्व किया जाता, मगर मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं वही चीज सप्लीमेंट करूं जो पैसे मैंने सेव कर रहा हूं उसकी फीसों के कम एक दरमियाने लेवल के स्कूल से, वो मैं फिर सप्लीमेंट उसको करूं फैसिलिटेट करने में, चीजें लाके देने में, बुक्स लाके देने में, डिफरेंट कोर्सेज में अगर वो एनरोल होना चाहता है तो उसमें। तो आई मीन आई नो पेरेंट्स हु आर स्पेंडिंग लाइक 60-70,000 अ मंथ फॉर इवन फॉर प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं वो इतना स्पेंड कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि मैं भी उतना ही स्पेंड करता हूँ, मगर मेरे स्कूल की फीस आधी से भी कम है। व्हाई? द रीजन इसके मतलब कि मैंने जो बाकी जो चीजें उसको करा रहा हूं वो अपनी मर्जी से करा रहा हूं कि यार ये वो करना चाहता है तो इस कोर्स के मैंने पैसे दे दिए, अच्छा ये पियानो लेना चाहता था मैंने पियानो उसको ले दिया। वो सारी चीजें मैं जो पैसे सेव कर रहा हूं उसके कोई बहुत एलेबरेट एलीट स्कूल में ना डाल के वो पैसे मैं लगा भी रहा हूं, मगर फायदा उसका यह है कि मैं अपनी मर्जी की या उसकी मर्जी की चीजें उसको करा रहा हूं बजाय इसके कि स्कूल अपनी मर्जी से कुछ करा रहा है। सो यू नीड टू हैव दैट डायरेक्शन। So rather than नौकरी going to so rather than going to an elite school or like paying a huge amount, you're saving a lot of that amount and gaining that freedom कि आप pick and choose कर सकते हो कि आपने outside of school अपने बच्चे के लिए क्या है। आपको उस डायरेक्शन का कुछ खुद अंदाजा है कि मैंने डायरेक्शन क्या देनी है बच्चे को, अगर नहीं अंदाजा देन लीव इट टू द स्कूल, फिर जाए उसको एलीट स्कूल में डालें बिकॉज वो सारा कुछ उसको करा देंगे अपनी मर्जी से। मगर अगर आपको खुद पता है कि मैं ये अपने बच्चा मेरी बच्चे की ये इंटरेस्ट है, बिकॉज एवरी किड इज एन इंडिविजुअल, तो मेरा बच्चा इंडिविजुअल है उसमें ये इंटरेस्ट है, वो स्कूल इतनी अच्छी तरीके से नहीं करा सकता, तो मैं वही चीज सेव करता हूं और खुद उसको वो सारी तालीम में वो वाली देता हूँ आउटसाइड ऑफ स्कूल। देखें एक चीज ये है कि अगर हम सेम वही पाथ लेते हैं जो कि सारे बच्चे ले रहे हैं मैट्रिकुलेशन का या ओ लेवल्स कैम्ब्रिज वगैरह का, सो वो तो सैचुरेट हो चुकी है। आपने कोशिश ये करनी है कि आपका बच्चा एक पतली गली से निकले, ठीक है ना, कि उसमें उसको उस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जाने की जरूरत पेश ना आए, बिकॉज वो उसके अंदर एबिलिटीज ऐसी हैं कि वो मेन स्ट्रीम कंपटीशन से निकल के भी उसके अंदर ऐसी एबिलिटीज हैं कि उसको बाकी स्कूल वाले ऑफर करेंगे या यूनिवर्सिटीज वाले ऑफर करेंगे भाई हमारे पास आ जाओ, बिकॉज यू हैव सो मच लर्निंग इन अदर फील्ड्स जो कि स्कूल नहीं करा रहे। दैट इज द पॉइंट। Got it. Chale, on that note, I think we can conclude this conversation. It's already been like way above our time, and I realize you must like go somewhere else as well to pick up Ilm for another course that he's already taking related to robotics. Yes, exactly. So I would love to have this conversation further with you. Okay, how do you manage all of this? Because of course, being a parent, it is not easy for everyone to do, but you do it really well. So let's end it here and would love to have you again on another such session and continue this conversation with you. Sure. Thank you so much for having me. Thank you so much.